بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانے، اگر وہ نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق اور فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکی دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کو کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیلے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے ایک شخص سے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे और उधर यजीदी फ़ौज को इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुंच रही थी, उनकी सीपा सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात को कबूल नहीं किया और वो हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ सोचिए कि कितनी हैरत की बात है। जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 82 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया, जो हज़रत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा यजीद का लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफ़िले वालों को पानी बंद कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम आपको ये बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहरे फ़ुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फ़ुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले वालों पर बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम फ़ौज़े यजीद इमाम हुसैन के घर वालों और तमाम साथियों को घेरे हुए थे। उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा, ये बात तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वो लौट सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरे करवा दिए ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलवा दिया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार ना था। प्यारे दोस्तों, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ ही गया। हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की बड़ी फ़ौज थी तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज़े यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी खुशी पीता गया। कभी हूर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं।
3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते करते एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमदार से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर के नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए। आपने एक मस्कीज़ा पानी भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फ़ौज ने लगातार तीर चला करके हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान शहीद हो गए और हाशमी शेर शहादत का जाम पीते चले गए। धीरे धीरे करके हज़रत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए। तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज पर अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ़ एक वजह थी कि आप हज़रत अली हैदर कर्रार के बेटे थे। यजीदी फ़ौज को ये यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए यजीदी फ़ौज के कमांडर ने अपने तमाम फ़ौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। फिर तमाम यजीदी फ़ौज के सिपाही हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिल करके हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे ताकत में कितना ही हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच सबसे खतरनाक जंग चल रही थी, इसी बीच में अचानक से नमाज़े असर का वक्त आ गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसी जख्मी हालत में असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया, जबकि चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था। तो हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया और यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए तो सिमरल जिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चला करके आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सरे मुबारक को नेजे पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया गया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी, जिनका नाम हज़रत जैनुल आबदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले में तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा शहर में लाया गया। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा हैं। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन चमक उठे दुनिया के रोशनी की तरह। हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के लिए अपने आप को और अपनों को कुर्बान कर दिया। और हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला करबला के मैदान में फ़रिश्तों को भेज देता। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला से पानी मांगते हैं तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपना सर सजदे में उन्होंने कटा दिया और अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार तलवार म्यान में से निकाली और दुश्मनों पर हमला जब किया। अल्लाह अल्लाह, ये हमला क्या था? अल्लाह के शेर का हमला था जो आपके मुकाबले में आया।
वो सीधे जहन्नम में पहुंच गया। सैकड़ों जुल्फिकार से लड़े और सैकड़ों को जहन्नम में पहुंचा दिया। जिस तरफ निगाहें पलटी सफ की सफ उल्टा दी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये पता चला होगा कि करबला की जंग में क्या हुआ था और ये जंग क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग कमेंट बॉक्स में या हुसैन ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।